Good morning, Namaskar, Sat Sri Akal, and Adab to all my valuable and respected viewers. Today we are going to discuss a very important and a very useful issue to have a good leader. And what are the traits which a good leader must possess? And if you don't have a good leader, then the team becomes a bheed, directionless, जिसको कुछ नहीं पता क्या किधर जाना है. Especially in army, they give a lot of weightage in defense forces, to having a good leader. Without a good leader, no army can win a war. So leadership is the most important factor in an individual. Everybody should become basically a leader. अपने अपने एरिया में हर एक आदमी को लीडर बनना चाहिए. और leadership is a very, you will get an ordinary citizen, every person has got, you will get a good worker, good employee, honest worker, hard worker, smart worker, dedicated worker, misguided worker, and various, they are giving very good results also, wonderful results also. And some very few people, very less percentage, they may not be good, but most of the people are working for the nation, for their family, for the organization, and they will require a leader. Without a leader, they can't deliver the designated task. So, what are those having all that good material, and until you have to have a good leader? These are, today I will discuss, there are the 12 traits that a great leader becomes. Good leader and a great leader. Good leaders are aplenty, but to be a great leader, one has to deliver the goods. One has to have some special ingredients, special properties. Pandit Nehru was recognized as a statesman of the world, a world leader. Likewise, our present Prime Minister is also recognized as a good leader. So, you must have, in an institution which has got a good leader, its progress is like anything. And if the leader is corrupt, arrogant, misbehavior, the organization's death is certain. 100% nobody can stop its death. He should not be jealous. There are certain bosses, they want, certain leaders are there, they want only ke saab, mere hi gun gao. I am the success is only because of me. Success cannot be because of only leader. It has to be a total teamwork, total team under a tremendous leader. And without team is useless if doesn't have a leader. And leader himself is useless if he is not able to develop a good team. So he has got a great contribution. Today, first of the thing is the leader must be confident and he should not be arrogant. उसको क्या करने जा रहा है, क्या करवाने जा रहा है, क्या मिशन है, क्या टास्क है, the leader must know and he must be able to guide his team to achieve that. He should be visionary, and not only visionary, if the task which he undertakes is, he should take it as a mission. So he must be able to convert his vision into a mission and achieve the task. And never be a passive listener. सुनिए, अपना दिमाग लगाइए, and then only, and never be arrogant. There are some people, एक आध आदमी बीच में खराब भी हो सकता है. And there are certain opinions which you may not like. आपके हिसाब से ये गलत suggestion है. But that you can listen to that person and within decent fashion you can refuse to accept that. Do not become arrogant. So be confident. आपको अपने काम पे पूरा भरोसा होना चाहिए. अगर नहीं है तो सीखिए. अगर आप ही कंफ्यूज्ड हैं,
आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं तो क्या आपकी टीम आपका डिलीवर करेगी। देन सेकंड नंबर, एम्पावर योर टीम। टीम को तैयार करिए और इस तरह से तैयार करिए कि वो डिलीवर कर सके गुड्स को। हेल्प करिए, प्रोवाइड हिम द फैसिलिटीज, द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फंड्स, द मटेरियल, द लाइब्रेरी बुक्स, all the material infrastructure, 3M they call it, man, material and machine. All the facilities you must provide to the team so that they can develop and deliver the goods. Then third is you must be a good listener. लोग आया नहीं, लोग ही उसको डांट के भगा दिया, तो जब आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा। ग्राउंड रियलिटीज विल ओनली कम फ्रॉम द लास्ट मैन इन द ऑर्गेनाइजेशन, द टीम। प्लीज लिसन टू द स्मॉलेस्ट मैन एंड द लास्ट मैन इन द क्यू। सबसे नीचे वाला पियून जो है उसकी भी बात सुनिए। एंड ट्राई टू बिकम ए गुड लिसनर। जब तक आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तब तक आप एक अच्छे लीडर भी नहीं बन सकते। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। देन बी फेयर वेयर एवर यू आर, वेदर इफ यू आर ए लीडरशिप का रोल आपको घर में मिला है, आप माँ है, बाप है, बड़े भाई हैं, टीचर है, कहीं पर भी आप टीचर है, प्रिंसिपल है, यू शुड बी फेयर विद ऑल द पीपल। आपके 6 बच्चे हैं तो अगर आपके घर के बच्चे ही फील करते हैं कि मेरा बाप जो है उसके साथ ज़्यादा, कई पेरेंट्स आपने देखा होगा वो बोलते ही रहते हैं कि यार देखो यार तुमको तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जब बाप ही बोल रहा है कि साहब मैं डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज बोल रहा है कि यार तुमको तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार, क्यों तुम ज़्यादा प्यार करते हो? When you have your own 5 children, you must make a statement, मैं सबको बराबर प्यार करता हूँ। हमारे नेशन के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर मी एज पर कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग, रिलीजन के बेस पे सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, तो दैट शुड बी द स्पिरिट दैट इज इनकलकेटेड इन आवर नेशनल स्लोगन एंड दैट शुड बी ट्रांसफर्ड टू आवर हाउस, organization, institution, a large organization. And then only this is the quality the leader must possess. Never be unfair. And any unfair and injustice done by you with anybody, he never forgets it till his death. बीज आप अनफेयरनेस का कहीं मत बोइए। वो कभी नहीं कोई बोलता अगर आपने किसी आदमी के साथ इनजस्टिस और बदतमीजी करी है, फॉर द सर्वाइवल ही मे जस्ट कीप क्वाइट, बट द पर्सन हु हैज बीन सफरिंग, हु हैज बीन हर्ट विल नेवर फॉरगेट इट। देन फिफ्थ इज यू मस्ट बी इमोशनली इंटेलिजेंट। आपको समझना चाहिए दूसरे की दुख का। जूता जब आप, you should have an empathy, not always sympathy. There is a difference between empathy and sympathy. Sympathy तो तरस खाने वाली बात है, किसी के तरस खाने से वो आदमी उठता नहीं है। Have an empathy, put your feet in the shoes and then feel it, कि कहाँ दर्द है, कहाँ तकलीफ है, और then try to putting yourself in his position, then solving his problem is an empathy. और सिंपैथी इज जस्ट तरस खाने से कोई समस्या हल नहीं होती है। यू मस्ट बी इमोशनली अंडरस्टैंड द इमोशन। जो आदमी की बॉडी लैंग्वेज से आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसको कहाँ दर्द है, व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट। मर जाएगा काम के लिए उसके बाद। व्हेन यू आर इमोशनली, यू आर एबल टू अप्रिशिएट हिज इमोशंस। देन प्लीज एनकरेज द फीडबैक। कोई काम करा, आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, कुछ बेनिफिट दिया, लोगों को बोनस दिया, लोगों को कुछ गिफ्ट दिए, प्लीज़ कलेक्ट द फीडबैक। हम लोग बस हम ही सब सही सोचते हैं, मैं जो करा होगा सही होगा। बहुत सारे लोग जो है साहब जब आपने करा होगा तो साहब सही ही करा होगा। आप तो साहब देवता हैं, कोई देवता नहीं है। भगवान से भी मिस्टेक हो जाती थी और भगवान ने अगेन ग्रेसफुली एक्सेप्टेड। और तभी आपको पता लगेगा ना कि आपने मिस्टेक करी है कि नहीं करी है, जब आप उसका फीडबैक कलेक्ट करेंगे। आप तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि आई हैव डन ए वंडरफुल जॉब, बट वेदर इट हैज बीन डन करेक्टली और नॉट। आपने 500 रुपये दिए, पीपल वर एक्सेप्टिंग 5000 रुपीज, यू हैव टू कलेक्ट द फीडबैक
that your action, what was your action, whether it has relieved the people or not. And some of the people, they don't like that feedback. बुराई नहीं, अपनी बुराई नहीं सुन सकते. जो आदमी बुराई नहीं सुन सकता वो तरक्की भी नहीं कर सकता. Always learning. It's an era of continuous learning. Lifelong learning. जब तक जिंदा हैं तब तक सीखते रहिए. एक डॉक्टर MBBS, in most of the universities, most of the organization where employment is taken, अगर आपकी डिग्री आपने ली है और 3 साल तक आपने उस डिग्री को यूटिलाइज नहीं करा है, and you are not, if you are going to for a job and you could not get a job for 3 years, mind it, you are not going to get it thereafter on based on that degree. 3 साल के अंदर जहान बदल जाता है. यूनिवर्सिटीज़ अपना सिलेबस बदल देती हैं, टेक्नोलॉजी बदल, जो आपने पढ़ा है उसकी आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं है. अगर आपने टेलीफोन पढ़ा था, अगर आपने मोबाइल आज से, नोकिया वॉज स्लाइटली बिहाइंड, नो फिनिश्ड. कहाँ है नोकिया? नोकिया वॉज वर्ल्ड लीडर. दे डिड नॉट लर्न फ्रॉम द टाइम, दे वर नॉट कंटिन्यूसली लर्निंग. एक डॉक्टर है, उसने MBBS आज से 20 साल पहले करी थी. आज की डेट में वो क्लर्क से भी बुरा है. नथिंग डूइंग. जो आपने 20 साल पढ़ा, अगर आप उसने कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट नहीं करा है. टेक्नोलॉजी सी, जो बाईपास सर्जरी होती थी 12 घंटे लग जाते थे, वो काट पीट के सारा घर वाले बाहर चीखे मारते थे. बट नाउ यू सी व्हाट ए चेंज इट हैज़ टेकन प्लेस. जब वो स्टेंट वगैरह आजकल लगाते हैं, एंजियोप्लास्टी जब करते हैं, व्हाट ए यार, यू कैन सी इट विद योर ओन आईज. आपकी एंजियोप्लास्टी हो रही है एंड 99.9% इट इज़ ए सक्सेसफुल. TB, आज से 10-15 साल पहले TB वॉज इनक्योरेबल. जिसको बोलते थे, जिसकी अरे यार उसको TB होगी, उसका नाम ही काट देते थे. अब ये मत हो गया, इसका डेथ वारंट इशू हो गया. बट नाउ यू सी इट इज़ ए 200% curable. I have not seen any TB patient who is not cured, provided he takes the medicine. If he doesn't take the treatment, who can treat that person? So continuous learning is a must. Engineering यार, आज अगर आप किसी ज़माने में टाइपराइटर से लेटर टाइप करते नहीं, even the post office from October onward, they have stopped sending registered letters. Speed post only. They have stopped. Money order gone. एंड इफ़ यू आर, अगर आप वो टाइपराइटर कर रजिस्ट्री लेकर के चिट्ठी जा रही है, चिट्ठी भी जब तक तो आपकी चिट्ठी 5 मिनट के अंदर आपको किसी भी वर्ल्ड की कंट्री से यू सेंड ए मैसेज, यू गेट ए रिप्लाई आल्सो. कोई टाइम का मतलब ही नहीं है. एंड यू आर नॉट कीपिंग पेस विद द टाइम, यू आर लेफ्ट बिहाइंड. दो टाइम इज द ओनली थिंग विच डजंट चेंज. टाइम इज ए चेंज, इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस. Those who do not change with the time, they are left behind. Change is the only thing which is permanent. It doesn't change. और चेंज तभी आएगा अगर आपने चौकड़ी मार के बैठ गए हो कि मुझे आगे कुछ, मैंने तो साहब M.Tech करी थी आज से 20 साल पहले. आई एम PhD, आई एम IIT ग्रेजुएट, आई एम IITian. जब आपने IITian करी थी तो the whole nation was welcoming. यार, you are a national asset. There were 10 jobs in your hands, that to have the heavy package. बट उसके बाद अगर आप बैठ गए हैं स्वाय मैनेजमेंट को गाली देने के बैठे, अगर यू आर नॉट डिलीवरिंग द गुड्स, दैट डिग्री इज गॉन. वो थी, अब थे, आज से 10 साल पहले आपने BTech फ्रॉम IIT करी थी. एंड दैट्स वाई कंटिन्यूसली, जब तक अपने आप को अप टू डेट नहीं, जो आपने पढ़ा था उस समय कंप्यूटर होते नहीं थे आज से 30 साल पहले. तो अगर आपने वहीं पर बैठे हो, यू आर इंटेलेक्ट, यू मस्ट बी कंटिन्यूसली लर्निंग, कंटिन्यूसली अपडेटिंग योर सेल्फ. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, एब्सोल्युटली यू आर लेफ्ट बिहाइंड. दुनिया किसी के साथ दया नहीं करती है इस काम के लिए. अगर आपने किसी का पेशेंट मार दिया बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, तो आपका आएंगे नहीं लोग, पेशेंट आएंगे नहीं आपको उस डॉक्टर के पास दिखाने के लिए. Nothing doing. Then you should not be feeling jealous. Then this is, I am talking about 8th point. आपके अंदर jealousy नहीं भरी होनी चाहिए कि यार मेरे से ऊपर कोई ना पहुंच जाए. I am number 1. ये बहुत बड़ी बीमारी है. इट्स ए मेंटल डिसऑर्डर. I am number 1. Nobody is number 1.
आज आप नंबर 1 है, कल मैं हूँगा. देर आर 5 people those who are already struggling day in and day out. आप इतना काम कर रहे हैं, वो 4 घंटे काम कर रहे हैं. देर आर large number of people those who are working for 5 hours, 6 hours, 7 hours. There is a race. And if you will not continue, if you are keeping that jealous कि आज से 20 साल पहले लोग मेरे पाँव को हाथ लगाते थे, मेरी नॉलेज थे, अगर आपने, एंड प्लीज गिव फैसिलिटीज टू योर टीम टू ग्रो. जेलस मत फील करिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनको फैसिलिटी दीजिए, कॉलेज की फैसिलिटी दीजिए, अपने इंस्टीट्यूशन की फैसिलिटी दीजिए. अगर उसके पैसे की कमी है तो ट्राई टू अरेंज फंड्स फॉर दैट पर्सन, लोन अरेंज करिए. I remember I worked in one organization. They used to provide me I did all these MTech and all that while being in job. All the facilities were coming from my organization. They were giving wonderful facilities. Even to the extent जब मुझे कहीं पेपर प्रेजेंट करने जाना होता था, कुछ होता था, used to club my duty if that organization is there in that particular city, they used to club my paper presentation as well as the work, so as to support me financially and to give a moral boosting. Allow your team to grow, and whatever they want, whatever is possible within the law, provide them the facilities so that they can grow. Then, 9th, give them the recognition. हमेशा उसको लेट डाउन मत करिए, जहाँ जाए उसकी बुराई मत करिए, उसका देख के मुंह मत बनाइए, देख के हंस के उसके बात करिए. एंड टेल टू गिव हिम ए पैट. अपनी सारी उम्र पीठ मत थपथपाइए, उसकी भी पीठ थपथपाइए. लेट हिम ग्रो, एंड ही कैन नॉट ग्रो इंडिपेंडेंटली अनटिल अनलेस उसके बास के उसके सिर पे हाथ नहीं है. प्लीज अलाउ दैट पर्सन. अगर वो परेशान है, डिस्टर्ब्ड है, अपसेट है, उसको अपना कंधा दीजिए, क्योंकि रोने से बहुत सारे दुख दूर हो जाते हैं. रोने के लिए कंधा चाहिए. इफ़ यू एज ए बास आप उसको कंधा नहीं देते हो तो कायदे से रो भी नहीं पाएगा. प्लीज हेल्प हिम एंड डू नॉट स्टैंड इन द वे इन हिज ग्रोथ बिकॉज ऑफ योर जेलसी और यू आर नॉट गेटिंग दोज फैसिलिटीज. दैट्स वाई यू आर ए गुड. अगर आप ये सब देंगे तभी तो हम आपको गुड लीडर कहेंगे. If your boss was not doing, that's why you don't call him good here. You don't call him excellent. Then, if you are, I'm talking about 10th trait. Please be, everybody is under pressure. There are situations where you are under pressure, stress. आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा. Some family stress, office की stress, target की stress. Some individuals' non-performance can be a stress. Try to remain calm and quiet. कोशिश करिए जब तक आप calm और quiet रहेंगे, you will be able to solve problem. Be competitive, be creative. और क्रिएटिव आदमी का किसी दूसरे आदमी से मुकाबला नहीं होता. क्रिएटिव आदमी का अपने से ही मुकाबला है. आज जो आपने काम करा, कल जो आप काम करेंगे, कल वाला काम आज के काम से बेटर होना चाहिए. देन जेन्युइनिटी होनी चाहिए आपकी केयर करने में. ऊपर से दिखावा नहीं, फ्रॉड नहीं. ऊपर लग रहे पर अंदर से आप उसको काट रहे हैं. यू शुड बी जेन्युइन एंड जेन्युइनली केयरिंग द पर्सन. जैसे गांव वगैरह में ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं, कोई बुढ़े जब बीमार पड़ जाते हैं, ज़्यादातर बुढ़े जो है बिना इलाज के ही मर जाते हैं. कोई उसके मुंह में गंगा जल पे डालता है, जय हो भगवान की, जय गंगा. अरे गो फॉर ए ट्रीटमेंट यार. should not be only talking nonsense, एक दूसरे से बात करके, verbal sympathy and all that. Doesn't require, apart from, doesn't require only that. It requires a treatment. Take him to the doctor. There should be genuinity and sincerity and honesty in caring. Most of the parents, most of the elder parents, they do not find that genuinity. ऊपर की बात है. They are only worried. अगर ये पैसा खर्च कर दिया तो मेरे लिए पैसा कम बच जाएगा. अगर मैंने उसके बुढ़े की पेंशन ही इसमें खर्च कर दी तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा. Be genuine that you are caring, and the man must get that message that my children, my family, my friends, my relatives, they are genuinely caring for me.
हाफ ऑफ द बीमारी इसी से हल हो जाती है, हाफ ऑफ द समस्या इसी से हल हो जाती है. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. देन लास्ट and the final is, who doesn't do mistakes? Who is perfect? Never look for perfection. Only God is perfect. जो मिस्टेक करते, जो इंसान होते हैं वो मिस्टेक करते हैं. जो नहीं मिस्टेक करते वो भगवान होते हैं. हम सब भगवान नहीं हैं. So if your subordinates, your juniors, seniors and all that, even if you have done a mistake, so please try to learn a lesson from mistakes. Teach you. Success gives you results. Of course, success जो है वो आपका कभी कभी दिमाग भी खराब कर देती है. सक्सेस जब दिमाग में घुस जाती है तो यू लूज बैलेंस, यू बिकम प्राउडी, एंड प्राउड इज द बिगिनिंग ऑफ योर अंत. जहाँ आपके अंदर घमंड आ गया वहाँ पर आपका अंत शुरू हो गया. तो प्लीज, अगर मिस्टेक करी है उसे लेसन लीजिए ताकि अगली बार आपसे मिस्टेक ना हो, एंड करेक्ट योर सेल्फ फॉर फ्यूचर एंड टेक a positive attitude. Try to teach that person, develop that team. A team without a good leader is a भीड़. तो एक टीम को प्रोडक्टिव एंड काम करने वाली बनाइए. With this, I am concluding my today's video with a request to all my viewers, listeners, to share it, subscribe to my channel, view it, and thanks a lot. Thanks a lot.